Okay, so exercise number 5, first sentence. Say an ascenseur. Let's go step by step. Most of you are correct, but there are some errors with some of them. Ishan, do not go ahead, please. Let's be with the class. We are still discussing the first one, so do not go ahead. First one. Say ka plural is always son. Say ka plural son. Okay, so step by step, slowly. Un ka plural des. Correct. In the same manner, ascenseur. Ascenseur ka plural is ascenseur with s. Okay. There is the answer in the chat for you all. Is the first sentence understood? Yes. Any doubts in the first one? Anyone so far? Clear? Let's try with the second one in the chat. Very good, Himani. Correct. Nikandro correct. Param correct. Nishita correct. Ayush. Um, okay, there is a small error. Remember, class, you have to also each and every word को check करने का. Am I changing every word in the plural form? Am I writing it correctly? There are some words which do not change in plural form and the others do change in the plural. So you have to think about it. Okay. I'll put the answer in the chat once again. Most of you have written correctly, but there is one small error that some of you have made. Say changes to sir song, correct. Changes to des, correct. फिर Shia should also take an S, no? So you have forgotten Shia has to take S. This is a dog. These are some dogs. Dogs. Dog should change to dogs with S. इंग्लिश में भी एस लेता है, फ्रेंच में भी एस लेगा. शिया शिया विथ एस. डॉग डॉग विथ एस. से शिया स सौ दे शिया. Clear? Sentence number 2 fine with all. Sentence number 3, let's see. Okay, Himani correct. Nishita no. Ishan yes correct. Nikandro correct. Ayushi small error. Okay. Class il का plural क्या है? Il, il. Il का plural is ils. Okay, remember il का ils होता है. फिर ils के साथ एथरो conjugation is sont. So you will write ils sont étudiantes with s. Okay. Il का plural ils. Ils के साथ sont is the एथरो conjugation. Étudiant with s. He is a student. They are students. Il est étudiant. Ils sont étudiantes with s. Clear? Third sentence fine with all. ऐसे वाले sentences test में हो सकते हैं. Next, LA Dollar Park. Okay, Himani correct. Mansi small error. Okay, Ayushi correct. Ishan. Ishan, you can skip the accent as of now. LA Dollar Park. So let's take it step by step. L changes to L's, E-L-L-E-S. L changes to L's, E-L-L-E-S. फिर L's के साथ एथरो conjugation S-O-N-T. S-O-N-T. दो will not change. ओके, दो डज नॉट चेंज. दो मतलब इन. प्रेपोजिशन का प्लूरल नहीं होता है. इन का इन्स नहीं होता है. ऑन का ऑन्स नहीं होता है ना. तो फ्रेंच में भी प्रेपोजिशन प्लूरल में चेंज नहीं होता है. क्लियर? ल चेंजेस टू ले. डेफिनाइट आर्टिकल्स हमको मालूम है. ल, ला, एल अपोस्ट्रोफ सबका प्लूरल एस. सो ल चेंजेस टू एस एंड पार्क विथ एस. So there goes the answer in the chat. You can cross check. Elles sont dans les parcs. She is in the park. They are in the parks. Okay. Elles, L का plural elles.
est changes to sont, don't does not change in plural, le changes to les, park takes s. She is in the park, they are in the parks. The last one, chalo, last one you should be able to do. Wow, very good. All of you have typed the last correctly. Very, very good. I have put the answer in the chat for everyone. Please cross check. Any doubts in these 5 sentences? Anyone so far? No. Mansi says no. Others, is everything clear? Great. So I will skip the sixth exercise as of now. We will go with seventh exercise. Now, when we are doing seventh exercise, there is one small thing you have to know before it. You have to come a little back. Come to page number. This is which page? 17. पेज 17 पे आ जाओ. पेज नंबर 17 पे येलो बॉक्स को रेफर करेंगे. avoir. ओके, दिस इज अ न्यू वर्ब. अभी तक हमने सिर्फ एक ही वर्ब पढ़ा था विच वाज एत्र. एत्र इज टू बी. je suis. याद है एत्र का कॉन्जुगेशन? ओके, लेट्स सी इफ यू रिमेंबर एत्र और नॉट. हाँ, चैट में डालते जाओ. आई विल टेल यू द सब्जेक्ट प्रोनाउन एंड यू विल टाइप द कॉन्जुगेशन. व्हाट डू यू राइट फॉर नु? एत्र का नु फॉर्म क्या होता है? In the chat, let me know. Very, very good. Himani correct. Amberlyn correct. Nishita correct. Okay, great. Arya, Twisha, Amberlyn, Himani, Nicandro, Mansi conjugation चाहिए. Nu का conjugation एत्र के साथ nu soms. Okay. Then how do you write the etra conjugation with ils and els? Plural, ils, els, ils, elles. Very good. Ils, els, plural, Twisha. इल्स एल्स के साथ हम सॉन्ट लिखते हैं, SONT. ओके, तो आई थिंक नाउ यू अंडरस्टूड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. एत्र कॉन्जुगेशन इज जस्ट वी SUIS ES. इल के साथ EST. नु के साथ SOMMES. वो के साथ E सर्कमफ्लेक्स TES. इल्स एल्स के साथ SONT. I am, you are, he is, she is, we are, you all are, and they are. That was etro. Now coming to avoir. Avoir is to have. Okay, यहाँ पे देखो, look at the cursor. Avoir is to have. So if I want to say I have, you have, he or she has, we have, you all have, they have, then in that case I have to conjugate the verb avoir. Avoir म्हणजे to have. Avoir means to have. Avoir એટલે to have. Now the conjugation J apostrophe AI. क्यों वोवल क्लैश होगा? अगर मैंने चैट में देखो, अगर मैंने JE और AI बाजू बाजू में लिखा तो वोवल क्लैश हो रहा है. लेट मी नो कौन सा दो वोवल क्लैश हो रहा है, चैट में बताओ मुझे. कौन सा दो वोवल क्लैश हो रहा है? यस ईशान, वेरी गुड वेरी गुड. ई एंड ए क्लैश हो रहा है बाजू बाजू में. तो ये वोवल्स क्लैश ना हो इसीलिए JE हैज चेंज टू J apostrophe. समझा? कर ल? अंडरस्टूड? कंप्री? JE is changing to J apostrophe because the vowels clash. So J apostrophe AI. जैसे LE changes to L apostrophe, LA changes to L apostrophe vowel clashes में, वैसे JE here is changing to J apostrophe. क्यों यहाँ पे vowel clash हो रहा है पर हम कुछ नहीं करेंगे. ओके, बिकॉज हम apostrophe सिर्फ j फॉर्म में लिखते हैं, ऐसा रूल है. क्लियर? सो रिमेंबर J apostrophe ही होता है, बाकी कोई भी सब्जेक्ट प्रोनाउंस में apostrophe नहीं लिख सकते. T apostrophe नहीं लिखायचं. इवन इफ द vowels clash, let them clash. क्लैश होता है वॉवल्स ना. सेकंड त्युआ में भी वॉवल क्लैश हो रहा है. यू इज क्लैशिंग विथ ए, पण होने देने का क्लैश. ओके, क्लैश थवा देवानु. लेट इट क्लैश. त्युआ इल और एल आ. अगेन एल आ में ई एंड ए इज गेटिंग क्लैश, पण कुछ नहीं कर सकते, होने देने का क्लैश. ओके, इल आ, एल आ. Nous avons, vous avez, ils, elles, ont. Now I want you to write down the words in English. J'ai matlab I have. Write down with pencil quickly. You already have the conjugation in the
टेक्स्ट बुक, इंग्लिश में लिख दो मीनिंग. J apostrophe AI मतलब I have. Tu a मतलब you have. Tu a is you have. Il or el a is he or she has. He or she has. He or she has. Nous avons म्हणजे we have. Nous avons we have. Vous avez એટલે you all have. Vous avez you all have. Ils, elles, on is they have. I have, you have, he or she has, we have, you all have, they have. J'ai, tu as, il a, elle a. Nous avons, vous avez, ils ont, elles ont. ओके, आई गिव यू 1 मिनट, मुझे ये स्पेलिंग अच्छे से करके दो. आवर कॉन्जुगेशन AIASA AVONS AVZONT, AIASA AVONS AVZONT, J'ai, tu as, il a, elle a, nous avons, vous avez, ils ont, elles ont. AIASA AVONS AVZONT. हो गया लर्न करके? In the chat let me know. Our conjugation पढ़ के हो गया? Yes. Arya says yes. Himani says yes. Nishita says yes. परम तो कब का हो गया? I know. ईशान yes. स्वयं का भी हो गया? I know. Okay. So I'm going to unmute one person now, and that's going to be Amberlyn. Amberlyn, click on unmute. Yes, ma'am. Amberlyn, I can't hear you. Hello. Can others hear Amberlyn? No. Himani says no. Mansi says yes. Swayam says yes. Okay, let me check my settings. Everyone else is able to hear Amberlyn. Why am I not able to hear then? Okay, let me test my speaker and microphone. Is my volume full? No, I can't hear. Uh-huh. Okay, Himani also can't hear. कुछ तो प्रॉब्लम, कुछ तो गड़बड़ है. Okay, Amberlyn, now try to speak. Hello. No, I still can't hear you. Okay, then there is some problem from my end because most of them can hear you. Right? Everyone else can hear except Himani and I. Himani and मुझे ही नहीं सुनाई दे रहा है लगता है. Okay, so there is problem from our end. Himani अपने यहाँ पे कुछ problem है. Amberlyn, you can type the answer in the chat. Okay? So I will tell the subject pronoun and आप मुझे conjugation बताओ. Everyone can do that. Amberlyn, I'll mute you since I can't hear you. So what? Let's write the answers in the chat. मैं सब्जेक्ट प्रोनाउन बताती जाऊंगी, आप कॉन्जुगेशन लिखते जाओ. चलो, राइट द कॉन्जुगेशन फॉर ट्यू फॉर्म. आवर, आवर, अभी हम आवर कर रहे हैं. वेरी गुड ऑल ऑफ यू. रॉन्ग हुआ तो ही आई विल टेल द नेम, अदरवाइज यू आर ऑल करेक्ट. चैंपियंस बन गए हो तुम लोग अभी. वेरी गुड ऑल ऑफ यू आर करेक्ट सो फार. परफेक्ट, फैंटास्टिक, कीप गोइंग. Excellent. Okay, now the conjugation with new form. I can't hear them. New form, Himani, new, N-O-U-S.
Himani, I would want you to change the answer. Yes, very good. Himani ने change कर दिया answer. All of you are correct. अभी ills else. ILS ELLES. इसके पहले के लेक्चर में सुनाई दिया मेरे को. Okay. Um, Amberlyn, I'm unmuting you. Try speaking. Let me see if I can hear you. Hello. No, I still can't hear you. Can everyone else hear her? Himani says I can. Oh wow, Himani can now hear her. Himani, क्या किया आपने? क्या जादू किया हिमानी? Uh, Amberlyn, are you speaking? Hello, ma'am. No, I can't hear you. Okay, no worries. I'll mute you. I will test my earphones later on. In the previous lecture, I was able to hear. तो अभी पता नहीं क्या हो गया. Okay, Amberlyn, one last time, please speak something. Hello. No, I still can't hear you. Okay. You can hear me, Amberlyn? आपको सुनाई दे रहा है? मुझे चैट में बताओ. Amberlyn, आपको सुनाई दे रहा है मेरा आवाज? Yes, she can hear me, but I can't hear. Okay, no worries. I will check my earphones again and then we'll see what to do. इसके पहले मैंने अभी लेक्चर लिया आज ही. आई डोंट नो, तभी तो मेरे को सुनाई दिया. ऑल राइट, सो लेट्स नॉट वेस्ट टाइम. आवर कॉन्जुगेशन कर रहे थे हम. सबने इल्स एल्स कॉन्जुगेशन लिखा करेक्टली. नाउ आई वांट यू टू राइट डाउन द कॉन्जुगेशन विद द ज फॉर्म. ज सब्जेक्ट प्रोनाउन भी लिखना. लेट मी सी इफ यू आर राइटिंग इट करेक्टली. सब्जेक्ट प्रोनाउन भी लिखो इस बार. Very good, very good, excellent. I wanted to see if you're putting apostrophe or not. सबने apostrophe डाला. Excellent, pat yourself. क्या बात है, excellent. चलो, now that you've understood our conjugation, I want you to solve exercise number 7. Exercise number 7. Let's do it together. Exercise number 7. Prachi is in the waiting room, but I don't see anyone here in the waiting room. Okay, yeah, now I see her. I have admitted her. Okay, let's try unmuting somebody else. Amberlyn says try with somebody else. Bansi, can you hear me? Try to unmute yourself, Bansi. Click on unmute, Bansi. Bansi can't unmute. Bansi, अभी try करो. नहीं हो रहा बंसी. Let me try with somebody else. Himani, try to unmute yourself. Hello, miss. Yes, Himani, are you speaking? Yes, yes, miss. Himani, आप कुछ बोल रहे हो क्या? I can't hear anything. Are you speaking? Can anybody hear Himani? Okay, Amberlyn can hear. Okay, मतलब confirm मेरे side से ही problem है. No worries. Okay, चलो. So let's get back to exercise number 7. Exercise 7 का first answer in the chat, please. In the exam, okay, everyone remember class, for the exam you will always write answers in full sentence and underline the answer. Okay? पर अभी के लिए तुम लोग सिर्फ एक एक वर्ड डालो चैट में तो चलेगा, so that we save time. But for the exam, always answer in full sentence, underline the answer. Clear? चलो, answer the first one. Nishita correct, Himani correct, Nikandro correct.
Mansi, correct. So people who write Ghatkopar na, you can write GK. That way I can see your name. नहीं तो तुम लोग घाटकोपर ईस्ट इतना बड़ा लिखते हो, फिर तुम्हारा नाम ओनली आई कैन नॉट रीड हियर इन द चैट. ओके, मेक श्योर दैट यू मेक इट शॉर्ट. घाटकोपर जीके, विक्रोली वीके, विलेपार्ले वीपी, डीएन का डीएन, जेबी का जेबी, चेंबूर का यू कैन राइट CHEM. That way we can read your name also. Okay, so first one, Monsieur Dubon. Now class, most of you have written correctly, but I will still, tell one thing. Monsieur Dubon मतलब subject pronoun क्या होता है? Mr. Dubon मतलब subject pronoun क्या हुआ? Yes, very good, very good. So remember class, the subject pronoun is il. पण il लिखने का नहीं आंसर में. Il should be in your head. Keep il in your mind and write the answer according to il का conjugation. तो आंसर में आप कैसे लिखोगे? Monsieur Dubon a you noto. This is your answer. Monsieur Dubon a मतलब you will write the a. Clear? Conjugation. Monsieur Dubon a you noto. Il जो है is the rough work that happens in your head. या आपको चाहिए तो रफ वर्क में साइड में लिखो, बट डू नॉट राइट इल इन द आंसर. इन द आंसर यू विल राइट मिस्टर द्यूबॉ को मिस्टर द्यूबॉ ही. मिस्टर द्यूबॉ को इल नहीं करोगे अनलेस दे टेल यू रिप्लेस द अंडरलाइन वर्ड विद सब्जेक्ट प्रोनाउन. यू विल नॉट डू इट. क्लियर? सेकेंड वन क्या करोगे? हाउ डू वी राइट मदाम इन? सो रिमेंबर मदाम इज MME. ओके, पियर एंड आंतुआन के साथ कॉन्जुगेशन क्या लिखोगे? निशिता करेक्ट, तनिष्का करेक्ट, निकांद्रो करेक्ट, मानसी सेकंड वाला करना है आंसर. ओके मानसी अच्छे से देखो. पियर एंड एंटुआन, टू बॉयज. वेरी गुड, वेरी गुड हिमानी. मानसी वुड यू लाइक टू चेंज योर आंसर? मानसी इल्स के साथ आ नहीं, इल्स के साथ क्या होता है? ONT. ONT. okay, now remember class, some of you are still writing ills on in the answer. तो ills ना आंसर में नहीं आएगा. ills should be the rough work. वो लिखने का नहीं. ills in the head and on the paper, on the answer sheet. ills in the head, on the answer sheet. ills in the head, on the answer sheet. okay, तो ills आप in the paper you will write Pierre and Antoine only. Pierre and Antoine को हटा के ills मत लिखना. Do not make this error. All right, your answer is going to be Pierre and Antoine ont une bicyclette. Clear? Ills should not be coming in the answer. Ills is the rough work that happens in your head or on the side. Next, sentence number 3. अभी यहाँ पे हम ills लिखेंगे क्योंकि डायरेक्टली उन लोग ने दिया है ills ont une sir. So when they are directly giving you subject pronoun, अपने लिए it's easy. जो क्वेश्चन में दिया है वही लिखने का बेसिकली. उन लोग ने इल्स दिया तो अपन भी इल्स लिखने का. उन लोग ने पियर आंतुआन दिया तो अपन को भी पियर एंड आंतुआन लिखने का. नेक्स्ट वन, मैरी एंड जॉन. मैरी एंड जॉन. Very good, very good. On. The paper is going to be around 20 or 30 marks. Okay, either 20 or 30. It's going to be for 1 hour only. Yes, correct. Next, last one. वो के साथ क्या लिखोगे? Test is on Sunday. Yes, तो हम लोग ज्यादा लिखेंगे. Okay, for practice. 20-30 marks so that you practice enough. Very good. Wuzave, correct. So I repeat the answers now. First one का A है. Chat में check करते जाना. Second one का on है. Second, third and fourth. तीनों का on थे. Second, third and fourth. Okay. And fifth का away. Chat में मैंने सब आंसर्स डाले हैं. Please check. If you have any doubt, feel free to ask. Exercise number 7 सबको समझा? No doubt. अच्छा, अगर I change the sentence from Monsieur Dubon to Monsieur Dubon et moi. Okay, first sentence में मैंने Monsieur Dubon की जगह पे Monsieur Dubon et moi लिखा, तो subject pronoun क्या हो जाएगा? मुझे बताओ. When I change my sentence from Monsieur Dubon in the subject to Monsieur Dubon et moi.
Okay, I changed this subject to this. Monsieur Dubon et moi. Yes, Amberlin is correct. Okay, so class remember whenever there is anybody plus moi. Okay, ये नोटबुक में लिख दो, ये मैंने पहले भी बताया है. Anyone plus moi is equal to no. Anyone plus, huh? Anyone plus moi is equal to no. Anyone plus moi is equal to no. Similarly, anyone plus toi या anyone plus vous is equal to vous. Okay? तो अगर मैंने फर्स्ट वाले में मस्टर ड्यूबो ए तुआ लिखा तो आप कॉन्जुगेशन क्या लिखोगे? मस्टर ड्यूबो ए तुआ डैश यू नोटो. आंसर क्या लिखोगे आवर कॉन्जुगेशन का? वेरी गुड एम्बरलिन. निशिता अवे एव इजेड, क्योंकि एनीबडी प्लस तुआ आया तो कॉन्जुगेशन वो फॉर्म में जाएगा एंड योर आंसर विल बी एव इजेड. ओके, ऑल राइट. नाउ लेट्स गेट बैक टू आवर कॉन्जुगेशन का सेकेंड कॉलम. सेकेंड कॉलम में क्या करने का ना क्लास, सपोज आई वांट टू से आई डू नॉट हैव, यू डू नॉट हैव, मुझे नेगेटिव करना है सेंटेंस को, तो कैसे करने का? सो रिमेंबर whenever you want to make a sentence into the negative form we add. Okay, what do we add? अभी इसके लिए I will jump to एत्र conjugation first. पहले हम एत्र का नेगेटिव सीखेंगे, क्योंकि एत्र का समझ गया तो आवर का ऑटोमेटिकली समझ जाएगा. सो आई वॉन्ट यू टू कम टू पेज जहाँ पे एत्र कॉन्जुगेशन है. यस, दिस पेज. कौन सा पेज है ये? दिस इज पेज नंबर 9. कम टू पेज नंबर 9. ये येलो बॉक्स को देखो, नेगेटिव फॉर्म माइनस दिया इधर देखो. पेज नंबर 9. इज एवरीवन ऑन पेज 9? आर यू ऑल विथ मी? यस, ओके. सो क्लास रिमेंबर जब भी सेंटेंस को नेगेटिव करना है, योर जस्ट इज आई एम. देखो मैंने लिखा है मीनिंग. स्टूडेंट हैज रिटन द मीनिंग ऑलरेडी इन हिज बुक. सो आई एम का आई एम नॉट. ओके, आई एम स्टूडेंट, आई एम नॉट अ स्टूडेंट. तो मुझे अगर नॉट बोलना है तो कैसे करने का? कॉन्जुगेशन के पहले न, कॉन्जुगेशन के बाद पा. any before the conjugated verb, pa before after the conjugated verb. तो conjugated verb को sandwich करने का no and pa से when you want to make it negative. Clear? conjugated verb को sandwich करने का किससे? no and pa से. कभी when you want to make the sentence in the negative form. So I am will become I am not. You are will become you are not. सेकेंड वाला में देखो ना n apostrophe हो गया. any has changed to n apostrophe. क्यों हो गया? Can you tell me? इन द चैट लेट मी नो क्यों सेकंड वाले में एन ई हैज बिकम एन अपॉस्ट्रोफ. देखो ऊपर तो हमने एन ई लिखा. यस, वॉवल्स आर क्लैशिंग. एग्जैक्टली माय पॉइंट. सो व्हेन द वॉवल्स क्लैश एन ई विल चेंज टू एन अपॉस्ट्रोफ. अभी टी वाले में वॉवल क्लैश हो रहा है एन ई एंड ई एस, तो ई ई क्लैश हो रहा है इसलिए एन अपॉस्ट्रोफ. ईल में भी वॉवल क्लैश हो रहा है, एल में भी, ओ में भी, फिर नू में नहीं क्लैश हो रहा है. देखो सो एन ई वापस एन ई हो गया, एन अपॉस्ट्रोफ से वापस एन ई हो गया. फिर वो में क्लैश हो रहा है तो एन अपॉस्ट्रोफ. इल्स जेल्स में क्लैश नहीं हो रहा है तो एम ई. नाउ यू अंडरस्टूड व्हेन टू यूज एनी एंड व्हेन टू यूज एन अपॉस्ट्रोफ. yes, clear to all? So when you're making negative class, add ne before the verb and pas after the verb. vowels clash हुआ तो ne को change करो n apostrophe में. all right, so I'm going to tell you the our का negative also. that was on page, अभी हम थोड़ा jump करेंगे ऊपर नीचे. our conjugation was on page 17. okay, Himani says 17. okay, as you say Himani. यहाँ पे 17 करेक्ट. तो यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे सब में वॉवल्स क्लैश हो रहा है. ए आई ए एस ए ए वी ओ एन एस ए वी जेड ओ एन टी, क्योंकि ए आई ए एस ए सब वॉवल से स्टार्ट हो रहा है ना, इसके लिए एन अपॉस्ट्रोफ हर जगह है. गेटिंग मी? जो ने पा, ट्यू ना पा, इल एल ना पा, नू नावो पा, वो नावे पा, इल जेल्स नॉन पा, सब जगह वॉवल्स क्लैश हो रहा है, इसीलिए सब जगह एन अपॉस्ट्रोफ है. अगर वॉवल्स क्लैश नहीं होता तो एन अपॉस्ट्रोफ की जगह क्या लिखते हम? चैट में बताओ मुझे.
NE. Correct, 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 correct. Is everyone able to hear me very clearly? Please let me know. Yes, yes. Mansi, everyone is able to hear me. Matlab then there is problem from your end. Try to disconnect and connect your audio. If you still face any problem, try to rejoin. फिर भी नहीं हो रहा तो anyway we are recording the session. Yes, अभी full sentence में लिखने का आंसर है, very important. So check the example now class. एक तो हमने सीखा कि नेगेटिव बनाना है तो क्या करने का. Okay, let me type a message for Mansi. She is not able to hear. Okay. So let's get back to the negative form. Negative बनाना है ना तो conjugation के पहले NE and conjugation के बाद PAS. Vowels clash हुआ तो NE changes to an apostrophe. Okay, this is your basic negative. Now, okay, class, name the indefinite articles in the chat. What are the indefinite articles? बताओ मुझे. Very good, Amberlyn. Very good, Nishita. Very good, Param. I'm waiting for more answers. Indefinite, very good, Himani. आयुषी इंडेफिनाइट आर्टिकल्स नेम करो, मैंने बताया. वेरी गुड निकांद्रो आर्या. ओके, नाउ क्लास अच्छे से याद रखो, इनडेफिनाइट आर्टिकल्स इन अ नेगेटिव सेंटेंस. जब सेंटेंस नेगेटिव होता है, मतलब जब सेंटेंस में नौपा होता है ना, तो इनडेफिनाइट आर्टिकल्स चेंज टू डीई और डी अपोस्ट्रोफ. ओके, नोट डाउन करो ये बुक में. इन अ नेगेटिव सेंटेंस, राइट डाउन. In a negative sentence, comma, the indefinite articles, bracket में लिखो अ युंदे, so that you know indefinite articles क्या है. In a negative sentence, comma, the indefinite articles अ युंदे in the bracket, अ युंदे in the bracket, change to, the indefinite articles change to, the indefinite articles change to DE और D apostrophe. ब्रैकेट में चैट में डाला है मैंने. DE और D apostrophe for all the verbs except एत्र. चैट में डाला है मैंने. In a negative sentence, comma, the indefinite articles अयुंदे change to DE or D apostrophe for all the verbs except एत्र. Okay, Mansi is now able to hear me. Mansi, क्या किया आपने? Mansi, what did you do? Did everyone finish writing the rule? Yes. Okay, so now I'm explaining the rule. अच्छे से ध्यान से सुनो. हाँ, very easy, but if you don't listen carefully तो फिर मिस हो जाएगा and then you will find it difficult. तो अच्छे से ध्यान से सुनो. फर्स्ट सेंटेंस यहाँ पे एग्जाम्पल देखो. एल आ देज ऑटो. सी माई कर्सर. एल आ देज ऑटो. ठीक है, ये वाला सेंटेंस. इज एवरीवन विथ मी? एल आ देज ऑटो, ये सेंटेंस दिख रहा है सबको? एल आ देज ऑटो. इसका नेगेटिव फॉर्म एल नापा. इतना समझा? नापा एन अपॉस्ट्रोफ, क्योंकि वॉवल क्लैश हो रहा है. ओके, नव ये नेगेटिव सेंटेंस है. नेगेटिव सेंटेंस में इंडेफिनाइट आर्टिकल आया डीएस, इसलिए डीएस को डी अपॉस्ट्रोफ में चेंज किया है ना. नेगेटिव सेंटेंस में इंडेफिनाइट आर्टिकल्स चेंज टू डी और डी अपॉस्ट्रोफ. यहाँ पे डी नहीं लिखा, डी अपॉस्ट्रोफ लिखा, क्योंकि बाजू में वॉवल वाला वर्ड है.
आर यू गेटिंग मी? ये रूल समझा सबको? लेट मी नो इन द चैट, इज दिस रूल अंडरस्टूड टू ऑल? डू यू वांट मी टू एक्सप्लेन वंस अगेन? एनीबडी, एनी डाउट? सबको समझा पक्का? प्रॉमिस? बताओ मुझे चैट में। इफ यू डोंट अंडरस्टैंड प्लीज फील फ्री टू आस्क। वन लास्ट टाइम आई रिपीट, अच्छे से ध्यान से सुनो, ओके, फॉर दोज हु मिस्ड आउट। एल आर देज ऑटो, ये वाला सेंटेंस देख रहे हैं हम इधर, सी माय कर्सर, एल आर देज ऑटो, इसको नेगेटिव कर रहे हैं हम। एल नापा, एल नापा, आवर का नेगेटिव, एन अपोस्ट्रोफ क्योंकि वॉवल क्लैश हो रहा है। ओके, सो एल आ का एल नापा नेगेटिव हुआ। सेकेंड थिंग, नाउ द रूल सेज इन अ नेगेटिव सेंटेंस, ये सेंटेंस नेगेटिव हो गया, नोपा आ गया इधर, बराबर, राइट? सो बिकॉज सेंटेंस इज नेगेटिव, नेगेटिव सेंटेंस में इंडेफिनाइट आर्टिकल्स जो होता है अ युन दे, इंडेफिनाइट आर्टिकल्स को चेंज करना होता है डी ई आर डी अपोस्ट्रोफ में। तो यहाँ पे इसीलिए डी अपोस्ट्रोफ हो गया। डी नहीं लिखा क्योंकि डी लिखते तो वॉवल स्लैश होता फिर से, तो हमने डी अपोस्ट्रोफ लिखा। नाउ इज इट क्लियर ट्विशा? समझा ट्विशा? आई वॉन्ट ट्विशा टू रिप्लाई येस। सबको पक्का समझा ये? ओके, वेरी वेरी गुड। सो दिस हैपेंस विद ऑल द वर्ब्स एक्सेप्ट एत्र। मतलब अगर एत्र का ऐसा है ना सेंटेंस, स सो, ये वाला एग्जाम्पल तो ऑलरेडी आपकी टेक्स्ट बुक में है, बट दूसरा एग्जाम्पल जो मैं टेक्स्ट बुक में दे रही हूँ ना, चैट में दे रही हूँ, वो आपको बुक में लिखना है। द एग्जाम्पल विच इज इन द चैट या बुक में लिखना, because this is exception. So what does exception says? The exception says when the sentence has एत्र in it, तो indefinite articles को डी में चेंज नहीं करने का, वो रूल अप्लाई इधर नहीं करने का। तो इसका आंसर सन सौंपा दे पॉम। डी एस को मैंने डी नहीं किया, क्यों? क्योंकि एत्र है इसमें। कहाँ पे एत्र है? एसओएनटी इज एत्र कॉन्जुगेशन। डिड यू अंडरस्टैंड? चैट में देखो, स सौ दे पॉम नेगेटिव, स न सौंपा दे पॉम, दे को डी में चेंज नहीं किया, काय को? बिकॉज यू हैव एत्र कॉन्जुगेशन। तो जब भी सेंटेंस में एत्र कॉन्जुगेशन हुआ तो ये रूल नहीं अप्लाई करने का। दिस रूल इज एप्लीकेबल फॉर ऑल वर्ब्स एक्सेप्ट एत्र। तो सेंटेंस में एस यू आई एस ई एस ई एस टी एस ओ एम एम ई एस ई सकमफ्लेक्स टी ई एस एस ओ एन टी दिखा तो ये रूल अप्लाई नहीं करने का। ओके, एम्बरलिन सेज यस, परम सेज यस, बाकी सबको समझा ये रूल? यस, निशिता सेज यस, अदर्स? आर्या सेज यस, ओके ओके, स्वयं सेज यस, ऑल राइट। तर वी कैन नाउ डू द नेगेटिव सेंटेंसेस which are yes given here right in front. Exercise number 8, पूरा सेंटेंस आंसर इन फुल सेंटेंस सो दैट आई नो आपका न पा किधर जा रहा है। चलो आंसर इन फुल सेंटेंस। सेंटेंस नंबर 1 पूरा सेंटेंस लिखो फिर एंटर मारो। आपके सामने सैंपल दिया है, एग्जांपल दिया है, देखो। सोफी ए devant la porte, सोफी ने pas devant la porte। निकांद्रो वेरी गुड, करेक्ट। हिमानी करेक्ट। परम करेक्ट। एम्बरलिन करेक्ट। ला पोर्ट नहीं, ला प्रोफेसर है एम्बरलिन। ओके, कॉपी अच्छे से करो, क्वेश्चन शुड बी कॉपीड प्रॉपर्ली। सो योर आंसर इज वो Vous n'êtes pas le professeur. This is negative. See how I've typed the answer. Vous n'êtes pas le professeur. Okay. Chalo. Now sentence number 2, everyone. Very good, Himani. Very good, Nikandro. Very good, Tanishka. Very good, Param. Swayam correct. Ayushi correct. Nishita correct. Amberlin correct.
Okay, I'm typing the answer in the chat for all of you. Please cross check in case I missed out correcting your answer. आर्या करेक्ट, पा मिसिंग है आर्या आपके सेंटेंस में. सी रिमेंबर है क्लास, पा भूल गए तो नेगेटिव कंप्लीटली नहीं होगा, फिर मार्क्स लूज होगा. तो नो एंड पा दोनों भी आना चाहिए सेंटेंस में. जॉन ने पा dans la classe. ने पा एन apostrophe est, पा pas dans la classe. एन apostrophe भूल गए तो भी मार्क्स लूज होगा, पा भूल गए तो भी मार्क्स जाएगा. ओके, सेंटेंस नंबर 3. Wow, that's really going fast. Himani correct, Nishita correct, Param correct, Nikandro correct, Ayushi correct, Tanishka correct. Ils ne sont pas ingénieurs. Ils ne sont pas. sont के पहले न, sont के बाद पा, इंजीनियर वैसे का वैसे कॉपी पेस्ट. Ils ne sont pas ingénieurs. मानसी est कहाँ से आया? सेंटेंस में est है ही नहीं. So your no and pa will go before and after SONT na Mansi. Please correct your answer in the chat. Mansi, please correct yourself. See Mansi, ऐसा आएगा आंसर. Ils ne sont pas ingénieurs. Okay, Mansi, are you getting me? Try to solve. Yes, Mansi. Try to solve the fourth one, everyone now. Very good, very good, very good. अरे एम्बरलिन नेगेटिव नहीं किया. रेस्ट ऑल करेक्ट. एम्बरलिन आपने क्वेश्चन ही कॉपी वैसे का वैसे कॉपी पेस्ट करके भेज दिया. आंसर कौन टाइप करेगा भाई? So the answer in the chat goes like this. Ce ne sont pas des étudiantes. Okay, ce ne sont pas des étudiantes. The answer is in the chat for all of you. The fourth one, please. The fourth is done, sorry. Fifth one. Very good. Correct. Les fruits ne sont pas dans le panier. सौ के पहले न, सौ के बाद पा, बाकी सब वैसे ही डिट्टो लिखने का. Les fruits ne sont pas dans le panier, डिट्टो कॉपी करने का वैसे का वैसा ही. Okay. So exercise number 8 is clear for all. Anyone any doubts in negative? सबको negative समझा? किसी को कोई शक किसी पे? ओके. अभी हम लोग ना let's do exercise number 10. Monsieur madam, replace the underlined word with il, el, ils or else. Okay, replace the underlined word with il, el, ils or else. Am I audible to you all, class? Yes. Amberly, then I think there is problem from your end. नहीं अभी सी इन द एग्जाम यू विल राइट इन फुल सेंटेंस. अभी के लिए इन द चैट जस्ट टाइप द करेक्ट आंसर. सो इन द लेट्स सी द एग्जांपल ऑफ एक्सरसाइज नंबर 10. जॉन ए avec ses amis. जॉन इज इल, ही, तो हमने इल लिखा जॉन को हटा के. तो रिप्लेस करने बोला है इसलिए हम जॉन को हटा के इल लिख रहे हैं. देखो रिप्लेस कंप्लीट क्लियरली बोला है, रिप्लेस. ओके, तो ही आप रिप्लेस कर रहे हो. नाउ टाइप द फर्स्ट वन. मिस्टर एंड मिसेस दीवाल क्या होगा? वेरी गुड, एक्सीलेंट. Mr. and Mrs. Duval will be ils, I-L-S, Arya. One boy, one girl is always ils, okay? Ils, I-L-S. Answer one is ils ont une belle maison, okay? एग्जाम में फुल सेंटेंस लिखने का, आंसर अंडरलाइन करने का. सो संडे टेस्ट में आई वांट ऑल द आंसर्स टू बी इन फुल सेंटेंस. फुल सेंटेंस में आंसर नहीं हुआ तो मार्क्स कट होगा.
ओके, सेंटेंस नंबर 2 क्या लिखोगे? लेस एत्युदियोंत को हटा के। वेरी गुड हिमानी, परम, प्राची, करेक्ट। एत्युदियोंत अच्छे से देखो। यस निशिता, नो। इज एत्युदियोंत एंडिंग विथ es? नहीं ना, एत्युदियोंत इज ओनली विथ s. इट मीन्स इट्स मैस्कुलिन प्लूरल. बराबर. So answer is ils, ILS. अच्छा, now I change the question. थोड़ा सा change, थोड़ा सा twist. Suppose I write एत्युदियोंत with es in the end, तो क्या लिखोगे आंसर आप? Yes हिमानी, correct. Else लिखोगे आप. Okay, if the एत्युदियोंत ends in es, then your answer will be else. Now we are doing the third sentence. La voiture la bicyclette. La दो बार la. Feminine singular and feminine singular मतलब feminine plural हो गया. दो बार feminine मतलब feminine plural. So your answer should be else. Very good Tanishka, Prachi, Amberlin, else. La voiture la bicyclette. La दो बार मतलब feminine plural हो गया. So the answer is else. For the fourth one, le sac, le livre. Le and le 2 times. Masculine 2 times मतलब masculine plural, which means yes, it's masculine plural. That's why ils. Very very good. अभी Catherine and Sophie. Girl and girl. 2 girls. Very good. So the answer is else. Excellent. Excellent. Superb. Now I will teach you the interrogative form. For the interrogative form, I want you to come to page 17. Okay, interrogative form is the third table. Is it too much for you all in one day? Shall I teach interrogative? Yes, सबको पक्का समझ रहा है ना? सब कुछ ज्यादा नहीं हो रहा है ना एक दिन में? Okay, so interrogative form class is quite easy. क्या करने का पता है? Subject pronoun and verb को उल्टा करने का, बीच में हाइफन लगाने का, लास्ट में क्वेश्चन मार्क. ओके हाँ एम्बरलिन, आई विल कम टू इंट्रोगेटिव ऑफ एथरो ऑल्सो. पहले आउआर का सीख लो. आउआर का सीख गए तो एथरा का ऑटोमेटिकली आ जाएगा. ओके सो जे फर्स्ट कॉलम देखो, जे अपॉस्ट्रोफ ए आई है. थर्ड कॉलम देखो, उसका उल्टा कर दिया, ए आई हाइफन जे ई. जे अपॉस्ट्रोफ से जे ई हो गया क्योंकि वोवेल क्लैश नहीं हो रहा है अभी. सिमिलरली सेकेंड वन देखो, त्यू आ का उल्टा कर दिया, आ त्यू हाइफन इन बिटवीन क्वेश्चन मार्क इन दी एंड. अभी थर्ड वाला इल आ का आतिल किया. क्यों आतिल किया? अगर हाइफन टी हाइफन नहीं लगाते ना बीच में तो ए एंड आई क्लैश होता. बराबर. एंड आतेल, अगर टी नहीं होता हाइफन टी हाइफन तो वोवेल्स क्लैश होता ए और ई. टू अवॉइड दिस वोवेल क्लैश देयर इज हाइफन टी हाइफन, एंड ये खाली इलेल फॉर्म में ही होता है. नूजावो देखो, आवो नू, हुजावे आवे वो, उल्टा कर रहे हम. इल्स ऑन्त इल्स, एल्स ऑन्त एल्स. तो सब्जेक्ट प्रोनाउन को एंड कॉन्जुगेटेड वर्ब को उल्टा करने का, बीच में हाइफन लगाने का, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाने का. वॉवेल्स क्लैश हुआ वो जनरली इलेल फॉर्म में ही होगा. वॉवेल्स क्लैश हुआ तो हाइफन टी हाइफन लगाने का बीच में. सबको इंट्रोगेटिव समझा? नाउ दिस एस्कर इज यूज्ड यूजुअली इन द जॉब फॉर्म. तो अगर उल्टा नहीं करना है ना, अगर एस्कर सेंटेंस में है देन इट बिकम्स अ क्वेश्चन. रिमेंबर क्लास, इंट्रोगेटिव फॉर्म इज यूज्ड टू आस्क क्वेश्चन. तो क्वेश्चन मार्क ही नहीं डाला ना तो मार्क्स लूज होगा. इंट्रोगेटिव फॉर्म में क्वेश्चन मार्क इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि क्वेश्चन मार्क नहीं है तो पता ही नहीं चलेगा कि द सेंटेंस इज अ स्टेटमेंट और अ क्वेश्चन, है ना. इन द जॉब फॉर्म एस्कर इज यूज्ड. ओके, जॉब फॉर्म में जनरली इंट्रोगेटिव करते हैं ना, तो वी यूज एस्कर एंड देन यू राइट जे एज इट इज. तो अगर मुझे जस्वी का इंट्रोगेटिव लिखना है तो आई विल यूज एस्कर जस्वी. गेटिंग मी? ओके नाउ एथरो कॉन्जुगेशन त्यू फॉर्म में मुझे बताओ क्या होगा. सब्जेक्ट प्रोनाउन भी लिखना क्लास. त्यू फॉर्म में एथरो कॉन्जुगेशन क्या है? एथरो कॉन्जुगेशन, एथरो जस्वी त्यू ए मतलब त्यू ए ई एस. यस, त्यू एंड ई एस का इंट्रोगेटिव फॉर्म लिखो अभी. वेरी गुड परम, वेरी गुड निशिता.
हिमानी एक्सरसाइज 6 में फुल सेंटेंस यस। एक्सरसाइज 6 तो हो गया ना हमारा। वेरी गुड, एथ यू, वेरी गुड वेरी गुड। नो सॉम्स का इंट्रोगेटिव फॉर्म लिख के बताओ मुझे, नो सॉम्स। आर्या निकांद्रो क्वेश्चन मार्क नहीं डाला तो मार्क्स लूज होगा। नो सॉम्स का इंट्रोगेटिव, वेरी गुड निशिता, वेरी गुड एम्बरलीन, वेरी गुड हिमानी, फैंटास्टिक परम, क्या बात है, सुपर्ब। सो अभी मैं अगर एत्र 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 का इंट्रोगेटिव फॉर्म में जाऊं, आई थिंक दैट वाज पेज नंबर 7 या 9 कुछ तो था ना, 9 पे था, ओके। तो यहाँ पे देखो क्लास, इंट्रोगेटिव फॉर्म तुमको एत्र का ऑटोमेटिकली समझ जाएगा, है ना। देखो जस्वी स्वीज, दूसरा ऑप्शन एस्क वाला, एस्क वाला ऑप्शन सिर्फ ज के साथ ही होता है, बाकी किसी के साथ नहीं क्लास, रिमेंबर। त्यू ए का ए त्यू, इल ए का ए तिल, एल ए का ए तेल, नु सॉम्स का सॉम नु, वूजेट का एत वू, उल्टा उल्टा उल्टा, हाइफन बीच में क्वेश्चन मार्क। समझा सबको इंट्रोगेटिव फॉर्म एत्र का। इधर ना किधर भी वॉवल क्लैश नहीं हो रहा है, इसलिए बीच में हाइफन टी हाइफन किधर भी नहीं दिखेगा। नाउ यू अंडरस्टूड इंट्रोगेटिव ऑफ एत्र एंड आवर बोथ, पक्का, प्रॉमिस। चलो देन लेट्स सॉल्व एन एक्सरसाइज। फुल सेंटेंस में लिखोगे, एक्सरसाइज इन फुल सेंटेंस दिस टाइम। सो आई थिंक दैट इज एक्सरसाइज नंबर, चैप्टर 2 में ही है, एक्सरसाइज नंबर, yes, here it is, exercise number 11, exercise number 11। एग्जाम्पल देखो, वूज एट अलाबोंग, एथू अलाबोंग, लास्ट में क्वेश्चन मार्क देने का, सेंटेंस फिनिश होने के बाद क्वेश्चन मार्क। वूज एट का एथू, हाइफन इन बिटवीन, कॉपी द रेस्ट ऑफ द स्टेटमेंट, क्वेश्चन मार्क इन द एंड। चलो लेट्स ट्राई फर्स्ट वन इन द चैट, ऑल ऑफ यू। वेरी गुड निशिता, परम, हिमानी, excellent, waiting for more answers। Amberlin correct, आर्या करेक्ट, निकांद्रो करेक्ट, बंसी करेक्ट। बंसी आत्यू, फिर उसके बाजू में वापस एस क्यों लिखा, दैट शुड बी रिमूव्ड। बंसी। तनिष्का करेक्ट, यस, अच्छा हुआ तनिष्का क्वेश्चन मार्क डाला। ओके, सेंटेंस नंबर 2, ऑल ऑफ यू इन द चैट, वेरी गुड, एक्सीलेंट। हिमानी, निशिता, परम करेक्ट। I'm waiting for more answers। Arya correct, Nicandro correct, Amberlin correct, that's it। I'm waiting for more answers। Twisha ने नहीं डाला अभी तक आंसर, वेरी गुड, तनिष्का करेक्ट। yes, sentence number 3 in the chat please। very good, Arya correct, Nishita correct, Param correct, Himani correct, Nicandro correct। all of you are not typing, everyone should type। very good, Amberlin, excellent। sentence number 4, very good, Himani, Nishita, Tanishka। तनिष्का सेंटेंस नंबर 3 टाइप किया, ओके, वेरी गुड, निकांद्रो। सेंटेंस नंबर 5, लास्ट वन, वेरी गुड। लास्ट वाला बहुत इंपॉर्टेंट था। परम आप एक चीज भूल गए इधर, निशिता आपने इलाका तो उल्टा किया नहीं है। स्वयं करेक्ट, बट क्वेश्चन मार्क इज मिसिंग, स्वयं। वेरी गुड, ओके ओके। Nicandro, there is a small error, class. I was oh, Amberlin has typed it correctly।
ओके, आई एम पुटिंग द आंसर इन द चैट. स्वयं ने भी करेक्टली टाइप किया है. So answer is in the chat for all of you. Very important thing over here is बीच में हाइफन टी हाइफन, क्योंकि वोवल क्लैश हो रहा है ना चिल्ड्रेन. सी ए इज क्लैशिंग विथ आई. याद है मैंने बताया था अवार में इलेल में होगा ये. सो बिकॉज द वोवल्स आर क्लैशिंग, रिमेंबर बीच में हाइफन तो लगाना है बट साथ में हाइफन टी हाइफन लगाना है, टी लगाना है. डिड एवरीवन अंडरस्टैंड द फिफ्थ वन नाउ? Yes, excellent. Any doubts in the interrogative form? No. Okay. So I think we have covered all exercises except exercise number 12, exercise number 6 and exercise number 9 जो मुझे finish करना था आज, but no worries. तो exercise number 6, 9 and 12 को छोड़ के कोई doubt है किसी को chapter 2 में? है ना, चैप्टर नंबर 2 का सारा एक्सरसाइज हो गया 6, 9 और 12 को छोड़ के. चेक करो और बताओ मुझे, डिड आई मिस एनीथिंग? सब एक्सरसाइज हो गया हमारा? नो, ओके, डिडंट मिस एनीथिंग. ऑल राइट. अभी यस, सो सेकेंड चैप्टर में से ना ट्रांसलेशन नहीं होगा. एंड और क्या नहीं होगा? एक्सरसाइज नंबर 6, 9 एंड 12 नहीं होगा. बाकी सेकेंड चैप्टर होगा. एम आई क्लियर? नाउ व्हाट इज योर एग्जाम पोर्शन? चैप्टर 0 पूरा, चैप्टर 1 पूरा, चैप्टर 2 में से ट्रांसलेशन नहीं होगा. एंड और क्या नहीं होगा? एक्सरसाइज नंबर 6, एक्सरसाइज नंबर 9 और एक्सरसाइज नंबर 12. 13 है क्या? नहीं, 13 कुछ नहीं भाई. 13 is just read the following. I will not give read the following in the exam na, Amberlin. Okay, so is portion clear to everyone? Any doubt anyone? तुम्हारे पास टाइम है 2-3 मिनट. if you want please ask. सबको सब कुछ समझा है? our conjugation, negative form, interrogative form, डेफिनाइट आर्टिकल्स, हाउ टू मेक प्लूरल, वो भी हमने किया एक्सरसाइज नंबर 5 में, राइट? स्वयं सेज नो डाउट, निशिता सेज नो डाउट, वेटिंग फॉर अदर्स. आई रिपीट द पोर्शन. ओके, चैप्टर 0 सब कुछ, चैप्टर 1 सब कुछ, चैप्टर 2 में ट्रांसलेशन नहीं है. ओके, एंड और क्या नहीं है? चैप्टर 2 में एक्सरसाइज नंबर 6, 9 एंड 12, बाकी सब कुछ है. वोकैबुलरी विल कम एम्बरलिन. चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2 का ट्रांसलेशन है, सॉरी चैप्टर 1 एंड चैप्टर 0 का ट्रांसलेशन है, मतलब उसका वोकैबुलरी करना है हमको. सो फॉर एग्जांपल चैप्टर 1 में व्हाट वोकैबुलरी डिड वी लर्न? हम लोग ने क्या क्या सीखा? सर मतलब मसियर, है ना, सरनेम मतलब नॉम, फैमिली मतलब फामी, लिव्र मतलब बुक, बियावेन्यू मतलब वेलकम, थैंक यू मतलब मेर्सी. Then when one enters in the class, one says bonjour. When one leaves, one says au revoir. Then हमने और भी vocabulary पढ़ा ना, पेन, बैग, पेंसिल, विंडो, प्रोफेसर, इन फ्रंट ऑफ, बिहाइंड, चेयर, बेंचेस, कितना सारा किया. तो यू हैव टू रीड द टेक्स्ट बुक फॉर चैप्टर 0 and 1. ओके, सबको समझा अभी हाउ टू प्रिपेयर? सब वर्ड्स का नंबर एंड जेंडर याद रखना पड़ेगा. डेफिनाइट आर्टिकल्स इज अयुंदे, इनडेफिनाइट इज ल, ला, एल अपोस्ट्रोफ, एल, ई, एस. कौन सा मैस्कुलिन वर्ड है, कौन सा फेमिनिन वर्ड है, अच्छे से याद रखना. सो फिल इन द ब्लैंक विद डेफिनाइट आर्टिकल आया तो यू शुड नो कौन सा मैस्कुलिन, अ लिखूं के यून लिखूं. नेशनलिटी हमने नहीं किया तो नेशनलिटी नहीं आएगा, बट कंट्रीज आएगा. ओके एवरीवन, कंट्रीज आएगा क्योंकि हमने कंट्रीज किया ना, याद है? एंड कनाडा, जापान, एताज़, सो कंट्रीज हमने किया, वो आएगा. नेशनलिटी हमने फिनिश नहीं किया तो नेशनलिटी नहीं आएगा. ओके, नाउ एम आई क्लियर विद द पोर्शन टू ऑल ऑफ यू? Yes, okay, all right. So since you have no doubt and since you are very clear with everything, you can fermer le livre. We can now end the class here. All the best for the test. One last time I repeat, answers in full sentence, underline the answer, write neatly. All the very best. Okay, so we'll stop here.
Have a good night. Bye bye. Au revoir. Adios. Ciao. Bye. All the best. Study well. Write well.